So, as usual, we are talk about cybersecurity and forensic part 1. This is the subject elective 2, and we already finished lot of topics. But today's we are also revise some last point of unit 1, that is the infrastructure intermediary. What is infrastructure intermediary? We will discuss, and then after we will talk about several examples and real tools that we are considered as an infrastructure intermediary. So let's begin. So under the infrastructure intermediary, we are focusing on those parts that are in between your clients and server. Please consider in between your client and server. What we are considering, that is the load balancer, virtual server, proxies, and web applications firewall. These are the different topics that we are going to consider as infrastructure services. Kindly consider. Why we have to consider these parts? Because of when attacker are attack, or when we want to analyze any services or analyze any server or analyze any attack that will already targeted by attacker, if we are not considering these parts for understanding purpose, or if we are not understanding these several tools and technology, that we cannot judge, we cannot assess properly. So these are the assessment area where we have to concentrate. We have to concentrate, is it used by virtual server, is handled by load balancing server, is it used a proxy server, or is there any web firewalls used by the server, or so on. So sometimes they may be a help a lot regarding to your attacking, regarding to your after attacking or anything. So infrastructure intermediary, it's the most important while you are going to understanding your profiling part, and profiling part will be considered one by one. First of all, we are going to understand what is virtual server. So I already talk about that, and I already show you several software. For example, Microsoft Virtual PC. For example, there is a VMware. These are the software that you providing to creating a virtual servers. Instead of Oracle's, IBM, Google, Amazon also providing their own servers on their original server. So why people are considered virtual server? Please understand. Some of the web hosting company, for example GoDaddy, Amazon, etc., attempt to spare hardware cost by running different web server on multiple virtual IP address on the same machines. ये क्यों कर रही है, पहले अंडरस्टैंडिंग कीजिए. अगर आप हर एक साइट के लिए हर एक सर्वर बनाएंगे, जैसे कि आपके पास 10 साइट है और आप 10 सर्वर खरीदेंगे, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी. अब कंपनियां करती क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग कीजिए. कंपनियां ऐसा करती है कि उसको हार्डवेयर कॉस्ट डाउन करने के लिए वो एक ही मशीन में, सेम मशीन में, उनके कई सारे मल्टीपल वर्चुअल आईपी एड्रेस क्रिएट करती है, जैसे कि वेब सर्वर को वो दिया जाता है. वेब सर्वर यानी कि ऐसा एक मशीन जिसको एक आईपी एड्रेस दिया गया है और उसके अंदर आपकी वेबसाइट रखी गई है. अब देखो, आपने एक ही मशीन में 10 वेब सर्वर, वर्चुअल वेब सर्वर लगा दिए, तो आपको 10 आईपी एड्रेस मिल गए. तो 10 आईपी एड्रेस से आपका एक ही मशीन हैंडल कर रहा है, जबकि आपका 9 मशीन का कॉस्ट डाउन हो जाता है. सो अब जो कंपनियां अभी इनके पास जो सर्वर होते हैं उसमें ये लगाकर चलाती है. सो बी अवेयर व्हेन यू आर गोइंग टू पॉट स्कैन, यानी कि अगर हम अच्छे असेसमेंट करते हैं और अगर हम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से है और मुझे अंडरस्टैंडिंग करना है हाउ मेनी वेबसाइट्स आर गोइंग टू रन अंडर दैट सर्वर, सो वी हैव टू पॉट स्कैन. और उसका रिजल्ट इंडिकेट ऐसा करता है कि देयर आर अ लाइव सर्वर एट अ डिफरेंट आईपी एड्रेस. आपको तो ऐसा ही लगता है कि देयर आर अ 10 सर्वर and there are 10 IP address. So we are understanding that there are 10 different machines. Actually, they are a single machines with a multiple virtual IP address. ये फायदा मिलता है कंपनी को. So हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप किसी की असेसमेंट करते हो, जब आप किसी का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में हैंडलिंग करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट आउट. ये सभी कुछ, यानी कि जो सर्वर, जो साइट्स आपकी चल रही है, जो पेज आपका चल रहा है, वो सभी सारा वर्चुअल सर्वर पे तो नहीं चल रहा है, क्योंकि वर्चुअल सर्वर तो एक ही होगा, फिजिकल सर्वर एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर 10 और सर्वर डालकर वो उन्होंने 10
आईपी एड्रेस अलग से बना दिए होंगे। सो दिस मे बी हैपन। सो ड्यूरिंग दैट प्रोफाइलिंग के टाइम आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल आईपी एड्रेस किसी ने यूज नहीं किया। सो ये पार्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज डिटेक्टिंग अ लोड बैलेंसिंग। अब ये भी बारी ऐसी आती है कि जहां पे आपको लोड बैलेंसिंग देखना है। अब लोड बैलेंसिंग ऐसी चीज है वो दिखाई नहीं दे रही, जैसे कि अभी आप अपने घर पे हो और आपका कितना काम है मुझे पता नहीं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी घर से दी गई होगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैनी अटैकर यानी कि हमारे जैसे छोटे छोटे जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो अटैकर्स ये निग्लेक्ट करते हैं लोड बैलेंसिंग असेसमेंट के लिए। बट लोड बैलेंसर हैव अ पोटेंशियल और ड्रास्टिकली चेंज वे यू डू योर असेसमेंट। लोड बैलेंसर से कई सारा आपका इफेक्टिव असेसमेंट नहीं हो पा रहा है। कैसे, वो हम देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लोड balancer are deployed to help make sure no single server is ever overloaded with request। लोड बैलेंसर का काम इतना है कि जितना भी लोड आता है उनको इक्वली प्रोपोर्शनल में बांटना। जैसे कि हमारे पास 10 सर्वर है, तो 10 सर्वर को जितनी भी रिक्वेस्ट आती है बारी बारी पे देना। जैसे कि हमारे पास 100 रिक्वेस्ट आई और एक्चुअली हमारे पास 10 सर्वर है, तो वो क्या करेगा, 100 रिक्वेस्ट को बारी बारी पे यानी कि 10 हर एक सर्वर को दे देगा और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगा। दैट इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग। नाउ लोड बैलेंसिंग डू बाय डिवाइडिंग योर वेब ट्रैफिक अमंग मल्टीपल सर्वर। जैसे कि 100 रिक्वेस्ट की ट्रैफिक आई तो उन्होंने क्या किया, वो डिवाइड कर दिया। 100 रिक्वेस्ट को डिवाइड बाय 10 सर्वर, दैट मींस 10 रिक्वेस्ट हैंडल बाय फर्स्ट सर्वर, 10 रिक्वेस्ट हैंडल बाय नेक्स्ट सर्वर एंड सो ऑन। For instance, when you issue the request on website, the load balancer may defer your request anyone out of for server. Yes, ये हमको मालूम नहीं है कि 100 रिक्वेस्ट में से कौन सी रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पे हैंडल होने वाली है। So this is the issue when attacker think about that first PC to attack on it may be not possible that request handled by another PC। ये भी हो सकता है। सो क्या होता है देखिए, what these types of setup means, you are going to use one attack may work on one server। यानी कि आपने ट्राई किया, एक मेथोडोलॉजी बनाई, एक टेक्नोलॉजी बनाई, एक टूल्स ऐसा यूज किया जो पहले सर्वर पे काम कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई तब आपने वही मेथोडोलॉजी अप्लाई की, बट इट मे नॉट वर्क एट द नेक्स्ट टाइम अराउंड। नहीं हो सकता, तो आप क्या हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कंफ्यूजन में आ जाते हो कि व्हाई दिस हैपेंस, समथिंग रॉन्ग, बिकॉज ऑफ देयर इज अ लोड बैलेंसिंग टेक्निक यूज्ड बाय द सर्वर साइड्स। सो प्लीज, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजरिंग पार्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरमीडिएट पार्ट। सो अंडर द लोड बैलेंसिंग देयर आर सेवरल टेक्निक्स। द फर्स्ट टेक्निक इज यू हैव टू आइडेंटिफाई IP range using several port scan tool. There are lots of port scan tool. We will discuss it later on, but right now understand port scan will be help you to detecting load balancing. Next is we can understand timestamp within a 1 second, within a microsecond. If the request gets a response, that means something was load balancing. So using timestamp analysis, we can get the load balancing technique. Using e-tag and last modified difference, we have to understand the several modifiers or several headers like e-tag and last modifier. Using these headers, we can understand there is a something load balancing technique. Yes, I will give an example also. Load balancing cookies. The special cookies will be handled by your load balancer. So we have to understand, is there any cookies that will work for your load balancing? We have to identify SSL technique, SSL certificate. Is there any anomaly of SSL certificate? Physical server पे SSL का certificate अलग सा दिखेगा और virtual server पे SSL का certificate अलग सा दिखेगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। You can identify this load balancing technique using your HTML source code। यानी कि आपको पता है जो भी सारा कोड आता है अपने ब्राउजर पे वो HTML source code है। अगर आप source code से भी आपका लोड बैलेंसिंग टेक्निक ढूंढना शुरू कर देते हो, समझते हो, तो आप
वहां से भी लोड बैलेंसिंग टेक्निक अंडरस्टैंड कर लेते हो। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स दैट विल बी हेल्प अ लॉट फॉर लोड बैलेंसिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। Now let me talk about first part, that is called port scan surrounding IP range. One of the simple one that you are going to identify load balancing server with the first determine IP address. First of all आपको करना क्या है, पहले तो एक IP एड्रेस को ढूंढ लीजिए एंड वो IP एड्रेस के आगे और पीछे वाले रेंज को आप स्क्रिप्ट कोड लिखकर ढूंढना शुरू कीजिए। We have seen that this technique several others nearby identical response probably or load balance or identical web server, यानी कि आपको मिल गया 8 नंबर का IP एड्रेस। तो आपने क्या किया, एक स्क्रिप्ट रेंज बनाया 8 से 5 पीछे और 8 से 5 आगे, यानी कि अगर पीछे गए तो 8 से लेकर हम पीछे जाते हैं तो 7 6 5 4 3 वाला मिलेगा, जबकि हम आगे जाते हैं तो 9 10 11 12 and 13 मिलेगा। So we are going to check is there any IP address which is near about this IP address, और अगर मिलता है तो that is a load balancing technique applied by your server. So however we can encounter one or a more server with a different from others, यानी इससे आपको पता चल जाता है कि आपका रेंज में जो IP एड्रेस आता है वो एक ही सर्वर पे है और वो आगे पीछे उनके आईपी रेंज बनाकर रखा है। प्रोबेबली जो लोग आईपी एड्रेस बनाते हैं वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं, जैसे कि मेरे फर्स्ट पीसी को फर्स्ट सर्वर को 1 दिया, सेकंड को 2 देते हैं, थर्ड को 3 देते हैं, तो उसी सीक्वेंस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इज देयर एनी आईपी रेंज और नॉट। टाइम स्टैम्प एनालिसिस, यूजिंग टाइम स्टैम्प वी कैन अंडरस्टैंड, जैसे कि हमने आईपी रेंज की हिसाब से हमने डिटेक्टिंग लोड बैलेंसिंग किया, वैसे ही आपके पास जितने भी रिस्पॉन्स आते हैं वो रिस्पॉन्स में टाइम स्टैम्प होता है। टाइम स्टैम्प यानी कि कितने समय में, कौन सी सेकंड में, कौन से माइक्रो सेकंड में आपको रिस्पॉन्स मिला। सो मैनी सर्वर मे नॉट हैव देयर टाइम सिंक्रोनाइजेशंस, यानी कि सभी समय का अलग अलग टाइम नहीं रखा गया होता है, यानी कि सबको एक ही समय में रिस्पॉन्स दे ऐसा कोई सिंक्रोनाइजेशन किया नहीं होता है। सो यू कैन डिटरमाइन इफ देयर आर मल्टीपल सर्वर, it may issue multiple requests with 1 second, within a 1 second. Kindly understand this part. Multiple server by issue multiple requests within a 1 seconds, यानी कि आपके पास 100 सेकंड आए, 100 रिक्वेस्ट आई थी, 100 रिक्वेस्ट में भी 1 सेकंड में हो जाए तो उसका मतलब कुछ ना कुछ पैरेलली चल रहा है। अगर पैरेलली कुछ चल रहा है तो आपने जो सर्वर पे कुछ ना कुछ इंतजाम किया होगा वो लोड बैलेंसिंग का ही भाग है। लोड बैलेंसिंग करना यानी कि पैरेलली आपकी रिक्वेस्ट चलाना। इफ योर रिक्वेस्ट आर डिटरमाइंड बाय द मल्टीपल सर्वर और डिफर्ड फ्रॉम टू योर मल्टीपल सर्वर, समथिंग वाज रॉन्ग और समथिंग हैंडल्ड बाय योर लोड बैलेंसिंग, दैट इज कॉल्ड टाइम स्टैम्प। एक ही समय पे एक से ज्यादा रिक्वेस्ट चलती है तो समझ लीजिए कि वहां पे कुछ लोड बैलेंसिंग किया हुआ है जो एक से ज्यादा रिक्वेस्ट को एक ही समय में हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट टेक्निक दैट इज कॉल्ड ई टैग एंड लास्ट मॉडिफाइड डिफरेंस। नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड हेडर एंड दिस इज कॉल्ड वैल्यू। दिस इज कॉल्ड हेडर नेम एंड दिस इज कॉल्ड हेडर वैल्यू। सो काइंडली अंडरस्टैंड, देयर आर 2 हेडर टैग, दैट्स नेम इज ई टैग, एंड देयर आर 2 लास्ट मॉडिफाइड हेडर नेम and there are 2 different value. So you can easily identify that e tag and last modify value in the header response for the same requested resource, and using that we can understand there are multiple files or different files from different server. So there was used by server as a load balancing. So using that we can understand there are more than 2 server handling with the number of multiple requests. Same technique are used with cookies. Proxy servers and load balancing, they always add their own cookies. The name of cookies is AA002. Here consider the name of cookie is AA002 and the value of cookies is like this. So kindly understand, something value given to the cookies, such that means unusual cookies, if it is present in your response header, that means
something load balancing technique used by your server. Such a kinds of cookies अगर प्रेजेंट होती है आपके रिस्पॉन्स हेडर में, तो इससे भी पता चल जाता है कि आपके सर्वर में लोड बैलेंसिंग यानी कि आपके टारगेटेड पीसी में लोड बैलेंसिंग टेक्निक यूज किया गया है। ये जब आप अटैक करने जाते हो, जब आप किसी की असेसमेंट करने जाते हो, तब ये जरूरत होती है। इन्यूमरेटिंग एसएसएल सॉकेट सिक्योर लेयर। इन्यूमरेटिंग एसएसएल इसका मतलब ये है whenever you are going to use applications, in fact load balancing none of these method listed previously work। अब तक के जो बात बता रहा हूं वो कभी कभी वर्क होता है, कभी नहीं होता है, तो हमको क्या करना है, then might be you see the try your SSL certificate may contain some difference whether SSL certificate each support the same cipher strength। अब यहाँ पे देखिए, मैंने मेरे एक ही पीसी में 10 सर्वर बनाए थे, मैंने बात आपसे पहले ही की। अब 10 सर्वर का जो SSL सर्टिफिकेट होता है, जिसको हम डिजिटल सर्टिफिकेट कहते हैं, उस डिजिटल सर्टिफिकेट का एल्गोरिथम का जो स्ट्रेंथ होता है, जिसको हम साइपर टेक्स्ट कहते हैं, वो साइपर टेक्स्ट सेम होना चाहिए, यानी कि मेरे 10 सर्वर में सेम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड, if one of the server may support 128-bit encryption as a ciphertext, अगर उसमें से 10 में से कोई एक 128 ciphertext हैंडल कर रहा है, जबकि अदर वन used 96-bit ciphertext, that means something was wrong। उसको एनामली कहते हैं। एनामली यानी कि डिफरेंस। आपके एक सर्वर में 128 का एल्गोरिथम चल रहा है, आपके दूसरे सर्वर में 96 बिट्स का एल्गोरिथम चल रहा है, तीसरे में 256 का एल्गोरिथम चल रहा है। इसका मतलब क्या, वो अलग अलग है। सो ये भी एक मिस्टेक आपको वहां पे हेल्प करती है रिगार्डिंग टू योर लोड बैलेंसिंग टेक्निक। अगर एक ही पीसी में होता तो वो एक ही होगा, इससे ज्यादा डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं हो सकते। सो ये भी आपको बहुत सारा हेल्प करेगा। Last technique, that is called HTML source code. Whenever you are going to run your any programs, browser will display source code when you are right click on view the source code. So it is most important part that HTML source code can contain some of the load balancing comments, and these comments may help you to understand is there any load balancing used by your server. So यहाँ देखिए, तो यहाँ पे दो सर्वर की इंफॉर्मेशन रखी गई है, 2.1 बिल्ड समथिंग, लेकिन यहाँ देखिए समथिंग वाज रॉन्ग, समथिंग वाज चेंज, हियर इज 93 और हियर इज 96। बेसिस ऑन दिस वैल्यू वी कैन अंडरस्टैंड देयर वाज यूज्ड बाय लोड बैलेंसिंग टेक्निक बाय योर सर्वर। सो ये आप कर सकते हो। अप टू नाउ किसी की कोई क्वेरी है तो बोल सकते हो। डिटेक्टिंग प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी क्यों यूज करते हैं? सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू योर रेगुलर सर्वर, वी आर यूज्ड इन बिटवीन प्रॉक्सी सर्वर। सो व्हाट विल डू? सो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंटरेस्टिंग टारगेटेड सपोज टू बी इनविजिबल। ये दूसरा पार्ट है जो इनविजिबल है। वी कैन नॉट सी दैट देयर इज अ सर्वर और देयर इज अ प्रॉक्सी सर्वर। सो डिवाइसेस लाइक प्रॉक्सीज आर सपोज टू बी ट्रांसपेरेंट टू द एंड यूजर। मुझे तो वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो तो बीच में होगा। So they are great attack point if you can find them। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉक्सी बीच में है या नहीं। So ये आपको बहुत सारी हेल्प करेगा कि आपको किसी का प्रॉक्सी कैसे ढूंढना है। पहले हमने क्या दिया, कैसे आपको लोड बैलेंसिंग ढूंढना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट प्रॉक्सी। कितने सारे प्रॉक्सी हम ढूंढ सकते हैं। प्रॉक्सी यानी कि इन बिटवीन द सर्वर। ये अल्टरनेटिव सर्वर है जो आपका मेन सर्वर का सभी लोड वगैरह हैंडल करेगा, रिक्वेस्ट वगैरह, दिस कॉल टू अ प्रॉक्सी। टू डिटेक्टिंग अ प्रॉक्सी, द फर्स्ट टेक्निक इट इज कॉल्ड ट्रेस रिक्वेस्ट। दिस विल हेल्प अ लॉट। अनदर इज स्टैंडर्ड प्रॉक्सी रिक्वेस्ट एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्ड कनेक्ट रिक्वेस्ट टेस्ट। ये तीन मेथोडोलॉजी है जो आपके प्रॉक्सीज को डिटेक्ट करते हैं। ट्रेस रिक्वेस्ट, स्टैंडर्ड कनेक्ट टेस्ट एंड स्टैंडर्ड प्रॉक्सी रिक्वेस्ट। Now the first technique, trace request. In this trace request, we are going to tell web browser and echo back content to the request just as it is received it। हम जैसे ही रिक्वेस्ट भेजते हैं ट्रेस, तो वो अपना कमांड चलाकर
इको कमांड वापस भेजने की कोशिश करता है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिबगिंग टूल. इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिबगिंग टूल. और फॉर्चुनेटली it is also used to traveling through the several proxy server before getting to the web server. यानी कि ये जहां जाएगा, यानी कि उसकी रिक्वेस्ट जहां जाएगी वो सभी का डेटा उसको इकट्ठा कर लेकर आता है जब तक वो अपने ओरिजिनल वेब सर्वर में नहीं पहुंचता. So by issuing the trace request command, proxy server will modify the request and send it to the server, which will echo back exactly what request is received. ये ऐसा कमांड है जो जैसा रिसीव करेगा वैसा ही वहां पे डिस्प्ले करेगा. यानी कि अगर वो प्रॉक्सी में से कुछ मिलेगा तो प्रॉक्सी वाला भी डिस्प्ले करेगा, अगर वो ओरिजिनल सर्वर में जाकर कुछ हैंडल करेगा, प्रोसेस करेगा, तो वो भी वहां पे से डिस्प्ले करेगा. तो यू मे यूज ट्रेस कमांड. ऐसा एक ट्रेस कमांड विंडोज में भी है. यू कैन यूज इट and try to identify is there any request. Yeah, I will show you at after the sessions, no problem. And using trace we can identify like this. The trace will be used via what server they are going to do. वो आपको सभी इंफॉर्मेशन देगा, होस्ट के बारे में, सर्वर के बारे में, डेट के बारे में, कौन सी जगह पे जाकर आया है, वाया कौन से आईपी एड्रेस से जाकर आया है, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन देगा. ये एग्जांपल के तौर पे. नाउ ट्रेस रिक्वेस्ट में होता क्या है? When your request is going to reverse proxy server, you will get different result. You may see here. पहले हमको कौन सा रिजल्ट मिलता था? See here 192.168.1.5. जबकि अगर प्रॉक्सी सर्वर होता है तो वो ऐसा आउटपुट देता है, server1.site.com. तो this is the difference using your trace request. So a reverse proxy is a front end proxy that is route incoming request from internet to back end server. और ये जो रिवर्स प्रॉक्सी होता है वो दो प्रकार के वेज से चलता है. प्लीज अंडरस्टैंड, देयर आर टू वेज टू हैंडलिंग योर रिक्वेस्ट. द फर्स्ट इज दे कैन रीमैप योर यूआरएल टू द प्रॉपर यूआरएल इनसाइड योर सर्वर. सी एग्जांपल. यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखिए, trace/folder1/index.axpx might be turned into trace/site1/folder1/index.asp. यहाँ देखिए ये ओरिजिनल है और उसको अगर हम प्रॉक्सी सर्वर में ले जाते हैं तो वो ऐसा बन जाता है trace/site1/folder1/index.asp. तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा. यानी कि रीमैपिंग, आपका जो यूआरएल होता है उसको रीमैप करता है, वो आपको रीमैप करके ही देता है. दिस इज द फर्स्ट वन. सेकंड क्या होता है? They are used change in the host. See here, the host value is here. First of all, पहले हमको ये दे रहा था 192.168.1.5, जबकि यहाँ पे आपका सर्वर का होस्ट नाम बदल चुका है. So headers to point the proper internal server to forward the request. तो ये आपका सर्वर का होस्ट बदल कर देगा. So इससे आपको पता होना चाहिए कि something was proxy used by your server. सो ये पहला टेक्निक है ट्रेस रिक्वेस्ट. ये दूसरा टेक्निक है स्टैंडर्ड कनेक्ट टेस्ट. अब ये स्टैंडर्ड कनेक्ट टेस्ट क्या है? इट इज ऑल्सो अ कमांड. पहले भी ट्रेस कमांड था, ये दूसरा कनेक्ट कमांड है. कनेक्ट कमांड इज यूज्ड टू इन अ प्रॉक्सी सर्वर टू प्रॉक्सी एसएसएल कनेक्शन. एसएसएल का मतलब सॉकेट सिक्योर लेयर, यानी कि सिक्योर कनेक्शन में ये काम आता है. अब ये करेगा क्या? प्रॉक्सी मेक्स एसएसएल कनेक्शन बिहाफ ऑफ क्लाइंट. इस पर्टिकुलर कमांड के कारण आपके लिए वो एक नया एसएसएल कनेक्शन बनाएगा. अब एसएसएल कनेक्शन कैसे बनाएगा और कैसे काम करेगा देखिए. इफ वी आर सेंडिंग http://secure.site.com/:443, it will instruct the proxy server to make it connections using SSL and the port is 443. ये आपका साइट का कनेक्शन है और ये आपका पोर्ट है. अब होगा क्या? If the connection is successful, the connect command will make a tunnel. टनल यानी कि एक जगह से, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक वहां पे एक जगह बनाएगा, उसको कहते हैं कनेक्शंस. और वो कनेक्शंस बहुत सिक्योर होगा. अब ये कनेक्शन बन चुका है क्योंकि आपका कमांड सक्सेसफुल हो गया है. अब होगा क्या? These commands can be abused
when it is used to connect server inside the network. अब ये कमांड आपका काम कब करेगा? जब आपका इनसाइड द नेटवर्क काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, कनेक्ट किया है रिमोट सर्वर से, 80 नाम का पोर्ट है और ये आपका प्रोटोकॉल यूज किया गया है। उसका मैथ यूजर ऑफ एजेंट, यूजर एजेंट यानी कि कौन सा ब्राउजर यूज किया है, तो ब्राउजर का नाम उन्होंने डिस्प्ले कर दिया मोजिला 4.0। उसका होस्ट का नाम बताया रिमोट वेब सर्वर, और वो सक्सेसफुल है इसलिए यहाँ पे लिखकर आया है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। और कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया इसलिए 200 आएगा, यानी कि सक्सेस स्टेटस के लिए 200 आएगा, और वो बताएगा कनेक्शन एस्टैब्लिश, यानी कि आपका कनेक्शन रेडी है। नाउ नेक्स्ट टेक्निक दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रॉक्सी रिक्वेस्ट। दिस इज ऑल्सो अनदर टेक्निक दैट विल यूज टू एड्रेस योर पब्लिक साइट्स, और इफ any proxy server return the response from the websites, that means it will direct to the server of any address of choice। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, मैंने गेट भेजा, दूसरा भी गेट भेजा, तीसरा गेट भेजा, एक ही आईपी एड्रेस से मैंने 3 अलग अलग प्रकार के पोर्ट यूज किए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, आईपी एड्रेस एक ही है लेकिन मैंने पोर्ट अलग अलग से यूज किए। 80 नंबर का पोर्ट है, 25 नंबर का पोर्ट है, 443 का पोर्ट है। ये तीनों को मैंने एक ही जगह से गेट रिक्वेस्ट भेजा है। सो दिस मीन्स यू कैन डायरेक्ट सर्वर एनी एड्रेस ऑफ योर चॉइस, अलाउइंग योर प्रॉक्सी सर्वर टू बी ओपन एनोनिमस प्रॉक्सी टू द पब्लिक, और अलाउइंग दैट अटैकर टू एक्सेस योर इंटरनल नेटवर्क। ये एक ही आईपी एड्रेस से हम दूसरे ऐसे कई सारे पोर्ट को यूज करते हुए हम चेक करना चाहते हैं कि ये सभी सारा हैंडल बाय प्रॉक्सी सर्वर तो नहीं हो रहा है। सो इससे भी आपको पता चल जाता है कि देयर वाज अ प्रॉक्सी इन बिटवीन योर सर्वर एंड यू और ब्राउजर्स। सो ये 3 प्रकार के टेक्निक है, प्लीज अंडरस्टैंड। ट्रेस रिक्वेस्ट, दैट इज ऑल्सो अ कमांड, स्टैंडर्ड प्रॉक्सी रिक्वेस्ट एंड स्टैंडर्ड कनेक्ट रिक्वेस्ट। तो ये 3 प्रकार के टेक्निक है जो प्रॉक्सी को डिटेक्ट करने में काम आता है। अब बात ये आती है कि हम हाउ वी कैन आइडेंटिफाई फायरवॉल्स डिटेक्टिंग। सो फायरवॉल को कैसे डिटेक्ट करते हैं एंड व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल। सो डिटेक्टिंग अ वेब एप्स फायरवॉल। अब फायरवॉल की बारी। अब तक हमने देख लिया था लोड बैलेंसिंग कैसे डिटेक्ट करते हैं, इसके बाद हमने देख लिया प्रॉक्सी को कैसे डिटेक्ट करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स वेब एप्लीकेशन फायरवॉल आर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। वो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है, हमको बहुत हेल्प करेगा, and they are placed in line between user and web server। ये दोनों के बीच में आता है। अब वेब ऐप फायरवॉल एनालाइज HTTP ट्रैफिक, आपके पास जो ट्रैफिक आता है, रिक्वेस्ट आती है, उसको डिटरमाइन करता है इफ इट इज वैलिड ट्रैफिक देन एंड ट्राइज टू प्रिवेंट फ्रॉम वेब अटैक। वो पहले यही काम करता है कि आपके ट्रैफिक को वैलिड करता है, और अगर किसी का अटैक तो नहीं है ना वेब अटैक जैसा। सो दे आर थिंक अबाउट लाइक इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम यानी कि किसी भी इंट्रूडर को प्रिवेंट करने के लिए ये सिस्टम बना हुआ है, वो वैसा ही काम अपना फायरवॉल करता है। इंट्रूजन यानी कि अनऑथोराइज्ड पर्संस, प्रिवेंशन यानी कि पहले से रोकना। वेब एप्लीकेशंस फायरवॉल्स आर स्टिल रिलेटिवली रेयर। ऐसा फायरवॉल रेयर मिलता है। टू सी व्हेन एक्सेसिंग एन एप्लीकेशंस बीइंग डिटेक्ट देम इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इंट्रूडर आए और फायरवॉल उसको डिटेक्ट कर दे, ऐसा रेयर केस में मिलता है, और आपको उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। सो व्हाट विल हैपन? Detecting whether the application firewall is running in front of your application actually quite easy। ये जो रिटर्न बुक्स में कहा है कि वो बहुत इजी है, बट हाउ? लेट मी गिव एग्जांपल सो यू कैन अंडरस्टैंड। इफ थ्रू आउट योर टेस्टिंग, यानी कि आप जो टेस्टिंग करते हो उसी दौरान यू कीप गेटिंग किक आउट, यानी कि बाहर निकल जाते हो। द सेशंस टाइम आउट, यानी कि सेशन का टाइम आउट जैसा मैसेज मिलता है। व्हेन इशूइंग एन अटैक रिक्वेस्ट, जब आप किसी भी क्लाइंट को एक अटैक का रिक्वेस्ट भेजते हो और आपको वो किक आउट कर देता है, बाहर भेज देता है,
सेशन टाइम आउट लिखकर भेज देता है, एंड एप्लीकेशन फायरवॉल इज लाइकली बिटवीन यू एंड एप्लीकेशंस। यस, इससे बहुत इजी टेक्निक नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने कोई अटैकर रिक्वेस्ट भेजा, आप किसी मशीन को अटैक करना चाहते हो, वो रिक्वेस्ट वहां पे पहुंचा, जैसे ही पहुंचा और आपको एक मैसेज आया, यू आर आउटसाइड और यू आर नॉट गोइंग टू इनसाइड आवर सेशंस, और इंस्टेंटली आपको वो रिजेक्ट कर देता है, क्विक आउट। सो समझ लीजिए कि वहां पे फायरवॉल लगा हुआ है जो आपके बीच में आ रहा है। Another indications that would be web server doesn't respond way it generally does and as usual request, but instead always return same type of error। दूसरा ये टेक्निक है कि आप किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट भेजते हो और वो आपको एक ही प्रकार का एरर भेज रहा है, तो समझ लीजिए वहां पे फायरवॉल लगा हुआ है। So how we can detect the firewall? Let us see very simple technique to detecting web firewall apps. The first tools that is called Taros. The name to detecting a firewall app, that is called Taros. Second technique that is called F5 traffic shield. Third technique that is called NetContium. Fourth technique that is called URL scan. And fifth technique that is called Secure IIS. Please understand these 5 different methodology, 5 different tools that will help you to detecting your web app firewalls. इससे आपको फायरवॉल कैसे है, फायरवॉल कैसे काम करता है, फायरवॉल बीच में है कि नहीं, वो डिटेक्टिंग के लिए काम आता है। टेरोस, F5 ट्रैफिक शील्ड, NetContium, URL scan and Secure IIS. So first thing, Taros. Taros web application firewall technology will respond to simple trace request. Please understand, Taros is used simple trace request and any invalid HTTP method such as puts. वो तुरंत ही आपको डिटेक्ट कर दे देता है टेरोक्स बॉक्स कि आपके यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। जैसे कि ये कुकीज उनको मिलेगा, वो आपको तुरंत ही बताएगा something was wrong, so kindly check it out, web apps firewall in between you and your server. So ऐसी वो कुकीज को ढूंढता है, और जैसे ही कुकीज मिलता है, टेरोस ऐप आपको वहां पे मैसेज दे देता है कि वेब एप्स इज इन बिटवीन यू एंड योर सर्वर। दूसरा, F5 ट्रैफिक शील्ड। When you are going to send any abnormal request, abnormal यानी कि जो नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं होते, वो F5 ट्रैफिक शील्ड, you will get response with some error. Traffic seal is also check standard cookies that will be used by your devices, and अगर ऐसा कोई नाम मिलता है ASINFO, अगर कुकीज का नाम ऐसा मिलता है, तो समझ लीजिए F5 ट्रैफिक सील आपका वेब फायरवॉल्स को डिटेक्ट कर आपके सामने रख देता है। तो ये वैल्यू भी वहां पे इंपॉर्टेंट है, ASINFO, that is detecting by F5 traffic seals. Now next, NetContium, यानी कि ये भी एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके फायरवॉल को ढूंढने के लिए काम आता है, and it is also checking your cookies. Once again, if the cookie is defined with NCI __session ID, that means NetContium उसी चीज को ढूंढ कर आपके सामने रख देता है, और उसकी वैल्यू भी देखिए कितनी सारी बड़ी लंबी है। उससे भी वो NetContium को पता चल जाता है कि आपके और आपके सर्वर के बीच में फायरवॉल लगा हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर, NetContium, F5 ट्रैफिक सील और Taros, ये 3 बचा चुका हूँ। नाउ URL स्कैन, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। URL स्कैन एक ऐसा फिल्टर है जो आप अपने HTTP रिक्वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। Don't worry about the URL scan, that is the true application for firewall, ऐसा नहीं है, लेकिन we can check it out instead of relaying length configurations or signature. It is a very simple to check your URL and find out default rules. जैसे कि by default URL scan के रूल के अंदर जितने कैरेक्टर होते हैं वो मैक्सिमम 260 कैरेक्टर होते हैं। If you find send request as a path more than 260 request, definitely
you get response 404. तो इससे भी आपको पता चल जाता है URL का भी मैक्सिमम, ये डिपेंड्स ऑन ब्राउजर पे होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये डिपेंड्स ऑन ब्राउजर के लेंथ पे मुताबिक होता है। लेटेस्ट ब्राउजर के साथ 1024 कैरेक्टर का भी लेंथ रिस्ट्रिक्शंस किया हुआ है। मे बी गूगल पे कोई और होगा और किसी और सॉफ्टवेयर में यानी कि कोई और ब्राउजर में कोई और होगा, बिकॉज ऑफ URL स्कैन, दैट इज द डिपेंड्स ऑन URL लेंथ जो आपके टॉप URL पे दिखता है। अभी यहाँ फिलहाल जो लिखा हुआ कैरेक्टर का लेंथ है वो 260 है। अगर 260 से ज्यादा आपको कैरेक्टर मिलता है तो समझ लीजिए समथिंग वाज रॉन्ग एंड दैट इज इन बिटवीन यू एंड योर सर्वर। Now last one, that is called Secure IIS. Again, it's like a steroid. When you are pump up commercial versions with a nice GUI, some nifty features, it will provide a lots of features also, and it is lot easier than big configurations file. जैसे कि आप URL में स्कैन कर कर देखेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है, कितनी कैरेक्टर की लेंथ है वो देखेंगे, लेकिन ऐसी कोई जरूरत सिक्योर IIS टूल्स में जरूरत नहीं होती है। वो सिंपली स्टडी करता है अपने डिफॉल्ट रूल को, और इफ इट इज फाउंड ब्रेक वन, यानी कि किसी ने ब्रेक किया हुआ है, तो डेफिनेटली सिक्योर IIS रिटर्न डिनाई रिस्पॉन्स, यानी कि वो ना बोल देता है और आपको 406 का एरर कोड भेज देता है। तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक दैट विल यूज टू डिटेक्टिंग वेब फायरवॉल एप्स। एंड up to now in your infrastructure intermediary, I already talk about virtual server, detecting load balancer, detecting proxies, and detecting web app firewall. Under the detecting load balancing, we have understand port scanning surrounding IP range, timestamp analysis, e-tag and last difference, load balancer cookies, enumerating SSL anomaly, and examining HTML source code. While to detecting a proxy, we can use trace request, standard connect test, and standard proxy request. And at the last moment, we already seen detecting web apps firewall, we can use Teros, F5 traffic shield, Net Continuum, URL scan, and secure IIS. So this is your today.